class we discussed about IMC, integrated marketing communication. Today we are going to discuss about the media planning. What is the meaning of media planning? What are the various factors of media planning, as well as what are the various process of media planning. So we are going to complete this topic, and we will complete the push and pull strategy in the marketing communication. What is the meaning of that? How we can use this strategy? We are going to discuss about this. Okay. But before starting the class, I just want to know that who is going to tell me about integrated marketing communication, which we discussed in the last class. Who is going to tell me about it? Raise your hand. सारे सारे कम्युनिकेशन टूल्स को ऐड करके फिर उसका यूज करते हैं जिसके थ्रू मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े कस्टमर को. What are those various tools? मैम जैसे ट्रेड प्रमोशन हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर से स्टेज कैंपेन हो गया, उसके बाद स्टेज शो हो गया, सबको मिलाकर. Okay. So importance last. Integrated marketing combination is a combination of all type of promotional tools that are used to persuade customer to buy the product. It includes self promotion, advertising, direct marketing, personal selling, etc. These tools are required because Yes, ma'am. These tools are required because the market is expanding. The market is now not as fragmented, but it has shifted to a wide market area, and the customers' perception and their need are changed. They need every time a more variety of goods, value-added objectives, and so the seller and producer are making their efforts to attract the customer towards them by these means. Very good. Who is going to tell me about the IMC process? Who is going to tell me about the IMC process? जिसका हमने abbreviation भी मैंने करवाया था last class में. Who is going to tell me about it? IMC process. CAT M square. याद आया? CAT M square. Who is going to tell me about the IMC process? Raise your hand. जो क्लाइंट होगा या एडवर्टाइजर होगा वो या तो होगा या तो वो अपना कोई एक डिपार्टमेंट बना लेगा कंपनी में एडवर्टाइजिंग का, या वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वहाँ पे आउटसोर्स कर देगा अपना काम. फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी सारे एड का वो बनाएगी, कैसे क्या होगा, क्या स्क्रिप्ट होगी, कैसे डिजाइन्स एंड एवरीथिंग दे आर गोइंग टू बेसिकली मेक. उसके बाद मीडिया हाउस का सिलेक्शन होगा कि कैसे हम उस चीज को कम्युनिकेट करेंगे, किस चैनल्स के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, प्रिंट मीडिया में, फिर डिजिटल मीडिया में कैसे, कौन से चैनल्स पे करेंगे, अगर क्रिकेट चल रहा है तो उस मैच में कैसे करेंगे, वो सब है. फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगा फिर धीरे धीरे, और लास्ट में फिर कोलेटरल सर्विसेज. मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है? बेसिकली ये वैसे स्पेशलिस्ट होंगे जो कुछ स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करेंगे. कैसे स्पेशलाइज सर्विस? जैसे कुछ सेल्स प्रमोशन एजेंसीज इसमें हो सकते हैं, जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को कैसे यूज करें, व्हिच वन इज द सुटेबल वन, हाउ मेनी टाइम्स वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सेल्स प्रमोशन टेक्निक इन द ऑर्गेनाइजेशन, what is the various way for doing the direct marketing, direct mail and everything. Means we can say that in today's world IMC जो है it is an effective promotional tool, right? So अभी में जो भी है direct mail और एक customer interaction through the AI, artificial intelligence, all these things जो है ये सारा भी new है. तो यहाँ पर specialized service मतलब हर एक अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के लिए, यानी हर एक प्रमोशन के एलिमेंट्स के लिए, प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर बोल सकते हैं पर्सनल सेलिंग, सब के लिए हम एक स्पेशलिस्ट को हायर कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर स्पेशलाइज सर्विस का मतलब यही है, यानी कि जो हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को हम हायर करेंगे तो वो क्या करेंगे? दे विल एनालाइज एंड दे विल टेल यू दैट व्हिच प्रमोशन, व्हिच टेक्निक इज सुटेबल फॉर यू, how you just need to implement these basically promotional tools. मतलब implementation कैसे करना है उनका, मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे करना है, इसके लिए हम स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या बोल
सकते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को हायर करेंगे। जो कोलेट्रल सर्विसेज है जिसमें यहाँ पर सपोर्ट फंक्शंस होगा जैसे एडवर्टाइजर्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। खैर कोलेट्रल सर्विस इज नॉट सच अ वैलिड, कुछ नहीं कह सकते इसको, बस यहाँ पर बस मान के चलिए कि कुछ स्पेशलाइज सर्विस जो यहाँ पर था, स्पेशलाइज सर्विस काइंड ऑफ कुछ एडिशनल जो सर्विस होंगे दैट विल कम्स अंडर द कोलेट्रल सर्विस। सो यू डोंट नीड टू स्टडी, मतलब यू डोंट नीड टू लर्न दिस कोलेट्रल सर्विस, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे आपके आईएमसी के प्रोसेस। और भी मैंने एक टॉपिक करवाया था, हाँ, फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द प्रमोशन मिक्स। हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द प्रमोशन मिक्स, रेज योर हैंड। First, type of the product, nature of the market, stage in the product life cycle, budget availability, and company policy. So what is the type of product? How we can use this nature of product से how we can determine the promotion mix? मैम अगर डे टू डे नीड वाला अगर प्रोडक्ट होगा तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट बार बार करने की जरूरत है, जैसे कंज्यूमर गुड हो गया या फिर Convenience goods basically. यस मैम। और सेकेंड हुआ नेचर ऑफ मार्केट, अगर मार्केट छोटा है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट को उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर मार्केट ज्यादा एक्सपैंडेड और ज्यादा बड़ा है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट का जरूरत पड़ सकता है। बहुत ज्यादा हाई है, when the competition is very much intense, in that case we just need to use the basically promotion mix, advertisement and other elements. Next, third one, the stage in the product life cycle. If product is introduction stage, then company will do aggressively advertisement. And fourth one, budget availability. अगर कंपनी के पास मतलब फाइनेंशियल उतना ज्यादा वो नहीं है, लो कॉस्ट है या फिर वो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो वो वॉल पेंटिंग या फिर डीलर के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकती है। बट अगर कंपनी बड़ी है तो वो लार्ज वो में एडवर्टीजमेंट कर सकती है। एंड लास्ट बजट अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होता है वो मास कंज्यूमर को हम एक साथ टारगेट करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। कोई अगर कंपनी छोटी है जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स ज्यादा नहीं है कि वो प्रमोशन में उसको लगा सके, तो ऐसे केस में कुछ और अल्टरनेटिव्स और सस्ते या बोल सकते हैं चीप एडवर्टीजमेंट पॉसिबल है, चीप रेट में एडवर्टीजमेंट पॉसिबल है। अब यहाँ पर कैसे हो सकता है ये? बाय यूजिंग द वॉल पेंटिंग वगैरह। खैर अभी बहुत जगह पे ये इलीगल हो चुका है ऑलरेडी, बट स्टिल वॉल पेंटिंग जो है रूरल एरियाज में आज भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब आज भी वहां पर कंज्यूमर्स जो है वॉल पेंटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड सेकेंड वो क्या कर सकते हैं, सेकेंड में वो इंटरनेट का यूज खुद कर सकते हैं, लाइक कुछ वेब डिजाइनर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं, या तो फिर वो रिटेलर्स को परसुएड कर सकते हैं कि आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, ठीक है। यानी कि जब कंज्यूमर आपके पास आए तो यू कैन सजेस्ट माय प्रोडक्ट एज राइट। सो ये हो गया आपके बजट अवेलेबिलिटी, यानी आपके पास जैसा रिसोर्स रहेगा यू कैन चूज दैट प्रमोशनल टूल। ओके, एंड पर्सनल सेलिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन इन दैट कि अगर बजट कम है तो यू कैन आल्सो ऑप्ट द पर्सनल सेलिंग, बिकॉज बजट कम है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि मार्केट शेयर भी आपका कम हो, इसमें आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कस्टमर को और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू द पर्सनल सेलिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आकांक्षा। मैम कंपनी पॉलिसी बताइए। तो मैम ये डिपेंड करता है किसी भी कंपनी के पॉलिसी के कि वो किस पॉलिसी पे वर्क कर रही है। अगर किसी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो डिसाइड करती है कौन सा प्रमोशन टूल को यूज करना है। So see, it's totally depend upon the company policy, company's environment, that what kind of atmosphere environment is there in the organization. In some organization, the whole solely every responsibilities, every decisions are dependent on the top level management, right? Means every decision will be taken by top level management without any consultancy with the other employees. But in the some organization, the employees are also taken their decisions, their advice is also taken into the consideration. So it's totally depend upon the company's policies, standards and the environment, that which kind of promotional tool they are going to use for promote their product and services. So these are basically factors which determining the promotion mix. Today we are going to study about that what is the meaning of media planning, as it is a part of ये 5M का एक part है, but because it already came in the last class question paper that is already asked in the last year,
we just need to study about this media planning. What is that? ठीक है, so media planning हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक दिन क्वेश्चन पूरे को हम डिस्कस करेंगे। सैटरडे को वाइवा है, सब लोग याद रखिएगा। चलिए, क्या है मीडिया प्लानिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया? मीडिया प्लानिंग क्या है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए हमें, अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमें किसी ना किसी मीडिया को यूज करना होता है। या तो हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएंगे, या तो फिर हम रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि आपका चैनल बेसिकली क्या होगा कम्युनिकेट करने के लिए, किसको? कंपनी टू कंज्यूमर। यानी कंपनी जो है किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी कंज्यूमर को, कौन सा चैनल को यूज करेगी, तो इसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं। यानी मीडिया को चूज करने के लिए प्लानिंग करते हैं। बेसिकली दैट इज मीडिया प्लानिंग। ठीक है, सो मीडिया प्लानिंग क्या है इसके बारे में लिख लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया प्लानिंग? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी चैनल को बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली चूज करते हैं। ठीक है, सो लिखिए, मीडिया प्लानिंग कैन बी डिफाइंड, राइट? मीडिया प्लानिंग कैन बी डिफाइंड as a process of selecting the right media, मतलब which media is suitable for my product। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कोई बिजनेस को शुरू किया है ना, और मैं बिजनेस शुरू किया, मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह मुझे सेल करना है। मान लीजिए कि मैंने ज्वेलरी का ऐसे कोई स्टोर ओपन किया, जो नकली इमिटेशन वाले ज्वेलरी होते हैं उनके, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। तो बीइंग अ सोल पर्सन, आपको क्या लगता है कि मैं कौन सी मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट को? थोड़ा सा सेंस लगाइए, कौन सा बेटर होगा? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे। आप अभी के टाइम पे अगर आप देखेगा तो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आई कैन यूज टू प्रमोट माय प्रोडक्ट, एंड फेसबुक इज द गुड ऑप्शन इफ माय बिजनेस इज इन द स्टार्टिंग फेज, राइट? सो आई कैन यूज द सोशल मीडिया। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच एक तरीके से मैं क्या करूंगी, चूज करूंगी। कंज्यूमर तक मैं डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करूंगी, बिकॉज ना ही मेरा बिजनेस इतना बड़ा है और ना ही बहुत ही पुराना है, ओल्ड है, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है बिजनेस। सो आई कैन यूज दैट मीडिया जहां पर कंज्यूमर मुझे जल्दी मिलेंगे, जहां पर कंज्यूमर मुझे ज्यादा बोल सकते हैं, ज्यादा मुझे कंज्यूमर एक साथ मिल जाएंगे, तो वो ज्यादातर सोशल मीडिया होगा। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एक हिंट था, एक एग्जांपल। अब हम फिर से लिखते हैं कि मीडिया प्लानिंग क्या है, वापस आते हैं। मीडिया प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ selecting the right media to advertise a product of an organization. Media planning can be defined as a process of selecting the right media to advertise a product of an organization, and also आगे लिखेगा, and also to determine when, 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 where, and how many times, when, where, and how many times the ad should be shown to get optimum result. Okay. Media planning can be defined as a process of selecting the right media to advertise a product. So media planning can be defined as a process of selecting the right media to advertise a product of the organization, and how many times, it also determines when, where, and how many times ad should be shown to get optimum result. See, media planning is something जहां पर एक चैनल को चूज करने की कोशिश करेंगे। एक प्रोसेस होगा जिसमें डिफाइन करेंगे कब, कहां, कैसे शो करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे देना है, कितने टाइम होना चाहिए, कितनी बार रिपीट होना चाहिए, कौन कौन से चैनल में हम दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो इसके बारे में कंपनी जो होती है क्या करती है, कंसर्न होती है। बेसिकली कंपनी सोचती है कि विच वन इज द इफेक्टिव वन। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मीडिया प्लानिंग। मीडिया मतलब होता है संचार के बारे में, कहां से हम कैसे कम्युनिकेशन करें, कहां से हम एडवर्टाइजमेंट दें और कितनी बार वो एडवर्टाइजमेंट शो हो। ठीक है, और साथ साथ में उसका हमें कैसे ऑप्टिमम और एक मैक्सिमम
एक्टिविटीज, बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज होंगी। आइडेंटिफाई करना कि विच मीडिया आउटलेट का मतलब क्या होगा कि जैसे टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड आउटडोर प्लेटफॉर्म। तो कौन सा मीडिया आउटलेट हम चूज करें, ठीक है। और उसके बाद हर एक आउटलेट पे, यानी हर एक मीडिया आउटलेट पर, हर एक मीडिया पे हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें, यानी हमें कौन से रेशियो में सारे अगर हम यूज कर रहे हैं मीडिया को, तो हमें कैसे उसको यूज करना है, कितने रेशियो में। जैसे मान लीजिए कि हमें एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे, चैनल्स पे ज्यादा करवाना है, तो हमने वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया। हमने बाकी जो एडवर्टीजमेंट है, जैसे न्यूज़पेपर में हमने वीकली एक बार एडवर्टीजमेंट करवा दिया, ठीक है। और जैसे हमने सोशल मीडिया में कंटिन्यूअसली करवा रहे हैं हम, तो हमें कौन सी मीडिया को किस रेशियो में यूज करना है फॉर द बेसिकली ऑप्टिमम रिजल्ट और फॉर द फाइनल बेनिफिट। तो इसमें लिखिए आगे कि मीडिया प्लानिंग कंसिस्ट वेरियस एक्टिविटीज, मीडिया प्लानिंग कंसिस्ट वेरियस एक्टिविटीज, media planning consists various activities. चलिए, media planning consists of various activities such as identifying the media outlet, और media outlet के बगल में ब्रैकेट डाल के ना media outlets के नाम लिख लीजिए। media outlet के बगल में ब्रैकेट ऐसे डालिए और उसके अंदर various मीडिया आउटलेट के बारे में लिख लीजिए। क्या क्या होगा इसमें, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट वेबसाइट्स, सोशल मीडिया। टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट वेबसाइट्स, सोशल मीडिया। These all are the examples of the media outlets. तो media outlets के बाद अब कॉमा डाल के लिखिए selection of media outlets, identifying the media outlets, selection of media outlets and investment in each media outlet. Media planning consists of various activities such as identifying the media outlet, selection of media outlet and investment in each media outlet. यानी हर एक में कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, हर एक में आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में मैं बताती हूँ आपको कि अगर मैं टेलीविजन चैनल पे एडवर्टीजमेंट की बात करें हम लोग, तो 10 सेकेंड से 15 सेकेंड का बहुत सारा एडवर्टीजमेंट होता है, राइट। अब ऐसे केस में आप उस 10 सेकेंड के स्लॉट के लिए भी आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है, जो हमने पहले क्लास में भी किया है। तो ऐसे में उसका पोटेंशियल, या उसका ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए वो इफेक्टिव वे हो सकता है एडवर्टीजमेंट, लेकिन बिकॉज इसका कॉस्ट बहुत हाई है, तो हमें हर चीज, हर मीडिया में कितना इन्वेस्ट करना है, इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना, साथ साथ में हर एक मीडिया से हमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमें कितना रिटर्न आ रहा है। अगर हम एडवर्टीजमेंट में 10 लाख रुपए खर्च रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट का सेल 10 लाख रुपए का नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिकली जो प्लानिंग है दैट इज नॉट वर्किंग, राइट। तो यहाँ पर इफिशिएंसी को देखते हुए मीडिया प्लानिंग में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और उससे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। अगर कोई एक्सपेंसिव मीडिया चैनल को हम यूज करें, जैसे टेलीविजन चैनल को, बहुत कम टाइम का स्लॉट्स अवेलेबल होता है, बहुत कम टाइम के स्लॉट्स मिलते हैं हमें, और अगर तब भी हमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट नहीं मिले तो वो क्या है, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि मीडिया प्लानिंग जो हो प्रॉपर, बिकॉज इसको चूज करना बहुत डिफिकल्ट है और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी। पर्सन जो होते हैं, जैसे कंपनी में कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो मीडिया प्लानिंग के लिए बेसिकली काम करते हैं, पूरा मीडिया को चूज करने के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर वैसे पर्सन को बोलते हैं मीडिया प्लानर, मतलब अ पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म, दे आर नोन एज मीडिया प्लानर, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, बहुत सारे मीडिया, जैसे कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर करती है, और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी या एडवर्टाइजिंग जो विद इन द कंपनी हो रहा है, वो कई बार मीडिया प्लानर को भी हायर करते हैं, ठीक है। मीडिया प्लानर क्या करेगा, वो सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपकी कंपनी का, जो हम लोगों ने नॉर्मल प्रमोशन टूल में पढ़ा था कि प्रमोशन टूल के लिए हमें ये फैक्टर्स एनालाइज करना पड़ता है, वैसे ही मीडिया प्लानर भी सेम चीज करेगा।
वो बेसिकली देखेगा कि आप नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है जो कंपनी ऑफर कर रही है, और बेसिकली वो कौन से ऑडियंस तक पहुंचना चाहती है, यानी कि विच ऑडियंस दे टारगेटेड, ठीक है, उनको कौन से ऑडियंस तक पहुंचना है वो भी आइडेंटिफाई करेगा, और साथ साथ में बजट भी रेडी करेगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए, यानी बजट वगैरह भी रेडी करेगा, और वो पर्सन जो होगा दे आर मीडिया प्लानर, ठीक है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या है मीडिया प्लानिंग के? वेरियस फैक्टर्स ऑफ मीडिया प्लानिंग लिख लीजिए, अब यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। मीडिया प्लानर कौन है, वो किस तरीके से इवैल्यूएट करेगा, किस तरीके से प्लान करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है सब कुछ जो मैं बता रही हूँ? सब क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? यस मैम। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स इन मीडिया प्लानिंग? कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके मीडिया प्लानिंग में, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है रीच। रीच यानी आपको कहाँ तक पहुंचना है, यानी कंपनी जो है वो कहाँ तक टारगेट कर रखा है उन्होंने मार्केट, ठीक है। सो रीच जो है, रीच REACH, रीच जो है वो एड का, एडवर्टीजमेंट का बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है मीडिया प्लानर को। जो रीच होगा, द रीच ऑफ मीडिया कैन बी डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु कैन सी एन एडवर्टीजमेंट, यानी रीच ये डिफाइन करेगा कि कितने सारे लोग, कंज्यूमर्स जो है इस एड को देखते हैं या देखेंगे, ठीक है, बाय थ्रू देयर डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कितने कंज्यूमर्स हैं जो सारे एड्स को देखेंगे। पहले जो ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म होता था वो क्या होता था, आपका टेलीविजन होता था और न्यूज़पेपर होता था, और ये ही बहुत मतलब ग्रेटर रीचेबिलिटी, मतलब ये जो था बेसिकली आपका बहुत ज्यादा मतलब रीच करने में बेसिकली ये ठीक था, प्रॉपर था। लेकिन अभी के जो टाइम में मतलब रेडियो भी ठीक था, रेडियो के कंपैरिजन में न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन वाज ओके, बट नाउअडेज अगर हम अब की बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट लिख लीजिए। रीच में लिख लीजिए, द रीच ऑफ मीडिया can be defined as the number of individual. The reach of media can be defined as the number of individual, who see an advertisement or post post through different media platform, ठीक है, different media platform। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कई बार आपकी कंटेंट के वे में भी होता है, रिटन फॉर्म में भी होता है, और वो वीडियो और ऑडियो फॉर्म में भी होता है। एडवर्टीजमेंट कैन बी पॉसिबल इन ऑल द वेज, रिटन फॉर्म, विजिबल या वीडियो फॉर्म, ऑडियो फॉर्म, ठीक है, सब फॉर्म में आपको ये हो सकता है क्या, एडवर्टीजमेंट। अब आगे लिखिए, जो ट्रेडिशनल मीडिया था, द ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म like television and newspaper have greater reachability as compared to media platform like radio। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट के लिए हम जो मीडियम को यूज करते थे, न्यूज़पेपर और टेलीविजन जो है वो आज भी इवन एफिशिएंट ज्यादा है अगर हम रेडियो को लें। रेडियो अभी कितने लोग सुनते हो आप लोग में से? वेरी रेयर, बहुत ही कम। सो यही बोला जा रहा है कि ज्यादा इफेक्टिव एड, और ऐसे बात भी हमेशा याद रखिएगा कि एडवर्टीजमेंट जिसको हम देख सकते हैं दैट इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव, हमेशा वो ज्यादा इफेक्टिव है जिसको हम विजिबली देख सकते हैं। अच्छा, कभी भी न्यूज़पेपर में भी आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे कभी भी कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है तो उस प्रोडक्ट बना हुआ भी होता है, मतलब देयर इज अ पिक्चर ऑफ दैट प्रोडक्ट एज वेल। एवर यू सी दैट the only written form is there, like there is one bike, its price is something like that, is never written, right? तो हमेशा जो विजुअल फॉर्म में या फिर पिक्चर्स फॉर्म में कभी भी एडवर्टीजमेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट। बट अभी के टाइम पे मतलब अभी जो है, पहले जो ट्रेडिशनल मीडियम जो है वो तो खैर अभी भी चल रहा है, वो कभी ओल्ड होगा भी नहीं,
अभी के एरा में देखें तो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम रीचेबिलिटी है। सो आगे लिखिए, however in the era of the internet, however in the era of internet, it means internet के जमाने में, however in the era of the internet, the social media platform has maximum reachability, means nowadays which medium is the suitable one? Basically social media. So social media जो है that have maximum reachability. Why? Because everything is now converted, everything you will find in the internet, and most of the time people invest their time on internet, right? Even the newspaper you will find, newspaper भी आपको internet में PDF के form में available हो जाता है ना? तो कहीं ना कहीं आपके हर चीज का alternative क्या है? इंटरनेट एंड आपका ऑनलाइन सोशल मीडियाज एंड ऑल। तो सोशल मीडिया जो है, और ये सबसे ज्यादा किसके लिए? सोशल मीडिया में अगर टारगेट भी करना है ना, तो कंज्यूमर कौन से होने चाहिए पता है आपको? यंगस्टर कंज्यूमर्स के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी के जितने भी लोग हैं, अभी जैसे आप लोग भी हो, ज्यादातर सारे स्टूडेंट्स क्या करते होंगे? क्लासेस तो खैर ऑनलाइन लेते ही हैं, बाकी प्रोडक्ट्स मंगवाना हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, सब लोग इंटरनेट में रहते हैं बैठे हुए। मोबाइल यहाँ पर मुझे लगता है 10 घंटे सब बच्चे यूज करते हैं, ट्रू और नॉट ट्रू? सो यंगस्टर, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो यंगस्टर के लिए बनाया गया है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स बाइक, फिर वॉच हो गया, ये सब कुछ भी अगर है, तो सबसे बेटर उसको प्रमोट करने का तरीका क्या हो सकता है? आपका सोशल मीडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कॉस्ट पर 1000। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रीच तो क्लियर हो गया, रीच क्लियर हो गया सबको? रीच क्लियर हो गया कि which medium is the best for maximum reachability? Clear? Next point is cost per 1000. Cost per 1000. Cost per 1000. अभी तक जहां तक किया है, किसी को कोई डाउट है? मीडिया प्लानिंग क्या होता है? मीडिया प्लानर कौन होते हैं? डाउट है? नेक्स्ट, कॉस्ट पर 1000 का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज डिवाइडेड पर 1000 पीपल, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए, अगर हमने 1 लाख रुपए खर्च किया, 1 लाख रुपए अगर हमने खर्च किया, तो ये हमेशा इसको हम डिवाइड करेंगे 1000% से, मतलब कॉस्ट को हमेशा हम कैलकुलेट करेंगे 1000% को एवरेज लेकर। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर मतलब 1000 रुपए एक कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि एक कंज्यूमर के ऊपर मुझे कॉस्ट एडवर्टीजमेंट का पड़ रहा है 1000 रुपीज, ठीक है। तो कभी भी जब भी एडवर्टीजमेंट होता है, कभी भी अगर एडवर्टीजमेंट होगा, जो कॉस्ट होगा आपका, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड कि जितना आपने पैसा लगाया है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ताकि पर कंज्यूमर आपका कॉस्ट कितना है वो पता लगे, ठीक है। तो इसमें आगे लिखिए, लिख लिया, इन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट ऑफ advertising is divided per 1000 people, per 1000 people, per 1000 people, per 1000 people। यानी अगर किसी कंपनी को सिर्फ 1000 लोगों को टारगेट करना है, तो 1000 लोगों के लिए बेसिकली कितना होगा? 1000 लोगों के लिए कितना होगा? कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10 लाख। 1000 लोगों के लिए 10 लाख पे करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है मैम? 1 लाख? हाँ, 100 रुपए। 100 रुपए? एक मिनट, मैंने कैलकुलेशन आप 0 है प्रोजेक्टर आप। ओके। सो यहाँ पर जो मतलब जो भी कॉस्ट होगा, मतलब एडवर्टाइजिंग का, वो डिवाइड होगा पर 1000 पीपल पे, ठीक है। तो पर 1000 पीपल पे, तो यहाँ शायद आई रोट 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए है, तो यहाँ पर बेसिकली वही आंसर, ठीक है, 10 लाख रुपीस होगा। और अगर 1 लाख रुपए है होगा, तो यानी कि पर पर्सन 100 रुपीस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जितने लोगों को आपको टारगेट करना है, उस हिसाब से आपसे
कॉस्ट लिया जा सकता है। अब जो टोटल कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग का वो कैलकुलेट होगा बाय मल्टीप्लाइंग कॉस्ट पर 1000 विद द टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। मान लीजिए कि अब एक न्यूज़पेपर है, उसका सब्सक्राइबर है 1 लाख लोग। ध्यान दीजिएगा इसमें। मान लीजिए कि कोई न्यूज़पेपर है और उसके सब्सक्राइबर है 1 लाख लोग, मतलब 1 लाख लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। एंड इट टेक मतलब हर एक से 100 रुपए ले रहा है। इट टेक्स 100 रुपीज फॉर एन एडवर्टीजमेंट, यानी 100 रुपए ले रहा है एडवर्टीजमेंट का। तो यहाँ पर उसको रीच करना है कितना, 1000 सब्सक्राइबर को, मतलब कि 1 लाख जो सब्सक्राइबर हैं। अब यहाँ 1 लाख का कोई सेंस नहीं है, हमें रीच अभी करना है फिलहाल एडवर्टीजमेंट के थ्रू और 1000 लोगों को, और 1000 लोगों को। तो यहाँ पर आपका जो पर पर्सन जो कॉस्ट होगा वो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए पे करना, 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज, 1 लाख यू हैव टू पे फॉर बेसिकली यहाँ पर 1000 लोगों को और बेसिकली रीच करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 1 लाख रुपए पे करेंगे। अब ये 100 रुपए कहाँ से आया, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब्सक्राइबर कितने थे, 1 लाख, और यहाँ पर कितना बेसिकली 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 रुपए निकल जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हुए? टोटल सब्सक्राइबर आपके कितने थे, 1 लाख सब्सक्राइबर हैं आपके पास, 1 लाख लोग, ठीक है। अब हम पर 1000 के हिसाब से आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को डिवाइड करेंगे ताकि पर पर्सन कॉस्ट निकल जाए। तो पर पर्सन कॉस्ट निकला 100, और अब हमें आगे 1000 और भी कस्टमर को टारगेट करना है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पर वही 1 लाख ही होगा। वही सेम घूम फिर के बात वही आ रहा है कि आपको पे 1 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट frequency of advertisement. Next is frequency of advertisement. ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि आपके जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से आपका पर पर्सन कॉस्ट निकाला जाएगा, और आगे अगर आप लोग जितने लोग को और टारगेट करना चाहते हो उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट। जैसे मान लीजिए 500 लोगों को करना था और 100 है, तो दैट विल कॉस्ट 50,000 रुपीज। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट। यानी एडवर्टीजमेंट आप कितनी बार दिखाना चाहते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार रिपीट कितनी बार करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल में आई एम टेलिंग यू दैट मैं कभी ऐसी कोई frequency of advertisement can be defined as the total number of times an ad would be shown to the individual, यानी consumers को कितनी बार दिखाया जा रहा है आपका क्या पर्टिकुलर एड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिख लिया था आप लोगों ने, सेकेंड पॉइंट लिख लिया था सबने, the cost of advertising divided वाला पॉइंट लिख लिया था सबने। नेक्स्ट लिखिए, इसमें पॉइंट में लिखिए, the frequency of advertising can be defined as the total number of times an ad would be shown to an individual. The frequency of advertising can be defined the total number of times an ad would be shown to an individual, यानी कितनी बार सेम ही बेसिकली एडवर्टीजमेंट को रिपीट किया गया है, नंबर्स, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड दैट एड, मतलब ये देखा जाता है कि कम से कम जो एड है वो एटलीस्ट 3 से 4 बार किसी भी ब्रांड का दिखाना चाहिए। बेसिकली देखेगा अगर कोई इंडिविजुअल तभी वो इन्फ्लुएंस होगा। इट मींस कि अगर आप कोई एक फर्स्ट टाइम कोई एडवर्टीजमेंट देखोगे, मे बी यू विल नॉट इन्फ्लुएंस, बट व्हेन यू दैट रिपीटेड एडवर्टीजमेंट आप बार बार देखेंगे, देन जाकर हम कह सकते हैं कि कस्टमर जो है दे विल शो सम कंसर्न टुवर्ड द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट, और मे बी वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है कंज्यूमर के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ही पड़ता है, किसका, एड की हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से।
और बात है कि जो कॉस्ट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट का वो थोड़ा ज्यादा होता है, मींस यू जस्ट नीड टू पे मोर अमाउंट व्हेन यू वांट मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एड। ठीक है, अगर आप अपने एड का ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स दिखाना चाहते हो तो आपको ज्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये जो है ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज इम्पैक्ट। यानी कि ऐसा कौन सा मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा असर करेगा किसके ऊपर, बेसिकली कंज्यूमर के ऊपर, सबसे ज्यादा परसुएट करेगा कंज्यूमर को, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, सो इम्पैक्ट इज समथिंग लाइक कि मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करे जो सबसे ज्यादा परसुएट करे किसको, ऑडियंस को, ताकि वो एक्शन ले, यानी फाइनल वो परचेज करे। राइट, सो यहाँ पर इम्पैक्ट में लिखिए the impact of the media platform means how likely the chosen media can persuade your audience to take action. The impact of the media platform means how likely the chosen media can persuade your audience to take action. ठीक है, अब जैसे मैं बताती हूँ कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है ना, ये भी बहुत, इसका भी रोल है। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट में ना अलग अलग एडवर्टीजमेंट सुटेबल। एग्जाम्पल में अगर आप देखिए तो हर एक डिफरेंट मीडिया का डिफरेंट इफेक्ट होता है ऑडियंस पे। एग्जाम्पल में एडवर्टीजमेंट ऑफ परफ्यूम, अगर एडवर्टीजमेंट ऑफ परफ्यूम का देखें तो फैशन मैगजीन जो है ना, दैट विल मेक मोर इम्पैक्ट एज कंपैरिजन टू लोकल न्यूज़पेपर। ट्रू और नॉट? अगर कोई फैशन मैगजीन है और उसमें कोई एडवर्टीजमेंट होगा, बिकॉज दैट मैगजीन इज स्पेसिफिकली फॉर फैशन वर्ल्ड, सो ऐसे केस में जब भी आप मैगजीन को स्टार्ट देखना शुरू करेंगे तो मे बी आपका मेन एम ही यही होगा कि अभी नया लेटेस्ट फैशन में क्या चल रहा है वो देखें। उस केस में जब आप कुछ नया परफ्यूम एंड इसको अगर आप एडवर्टाइज करोगे तो कंज्यूमर जल्दी परसुएड होगा। वेयर एज द न्यूज़पेपर इज ऑलवेज फॉर द नोइंग अबाउट, नॉलेज के लिए होता है, इंफॉर्मेशन के लिए होता है। वहां पर अगर एडवर्टीजमेंट होता भी है तो उसका भी इम्पैक्ट है, बट कंपैरिजन टू द फैशन मैगजीन इम्पैक्ट उतना ज्यादा हाई नहीं है। हो सकता है कि आप एक बार एडवर्टीजमेंट देखो और फिर आप अपने वापस से कुछ भी आर्टिकल्स और एडिटोरियल अपना पढ़ना शुरू कर दो। तो फैशन मैगजीन में इसका इम्पैक्ट, यानी कि आपने जो मीडियम चूज किया है उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर के दिमाग में अलग अलग पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एडवर्टीजमेंट में वही सोशल मीडिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर फूड का जो एडवर्टीजमेंट है, मतलब सोशल मीडिया में हम क्या क्या एडवर्टाइज कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, फैशन वाली चीजें भी सोशल मीडिया में कर सकते हैं। अगर कुछ खाने पीने की चीजें, फूड वगैरह, ठीक है, तो फूड वगैरह के लिए सबसे इम्पैक्ट वाला चीज होगा टेलीविजन, इम्पैक्टफुल होगा टेलीविजन। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चों लोग का खाने के लिए कुछ केलॉग्स और ये सब चीजें हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर वो किस तरीके से टेलीविजन वगैरह में, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बच्चों के चैनल्स पोगो वगैरह जो आते थे उसमें सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता था। ठीक है, तो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट को सेट करना है आपके मीडिया में ताकि वो मैक्सिमम इम्पैक्ट डाले कंज्यूमर पे, दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ मीडिया प्लानिंग। ठीक है, अगर रॉन्ग मीडिया प्लेटफॉर्म चूज कर लिया अपने प्रोडक्ट के लिए तो ऑब्वियसली द आउटकम विल बी नेवर गुड, व्हाटएवर यू एक्सपेक्टेड यू नेवर एबल टू अचीव। तो इम्पैक्ट सबको क्लियर हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन सेलेक्टिविटी, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द मीडिया प्लानिंग। सेलेक्टिविटी, ठीक है, सेलेक्टिविटी, इसमें 2 लाइन लिख लीजिए, फिर इसको इलैबोरेट करती हूं मैं। This factor focuses on the number of logical audiences. This factor focuses on number of logical audiences in the advertisement of your product. In the advertisement of your product. In the advertisement of your product. The factor focuses on the number of logical audiences in the advertisement of your product. अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये लिख लीजिए,
The high reachability of your media platform, the high reachability of your media platform will be ineffective, will be ineffective, will be ineffective if the percentage of the valid, if the percentage of the valid audience, if the percentage of the valid audience who can afford to purchase, who can afford to purchase, who can afford to purchase your product is low, who can afford to purchase your product is low. The high reachability of your media platform will be ineffective if the percentage of the valid audience, if the percentage of the valid audience who can afford to purchase, who can afford to purchase your product is low. हो सकता है कि आपने जो भी मीडिया यूज किया हो वो उसकी रिचेबिलिटी हाई हो सकता है कि बहुत सारे कंज्यूमर को वो रीच कर रहा हो, पहुंच रहा हो, लेकिन उसमें से कितने हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं वो बहुत मैटर करता है। मैं अगर मान लीजिए अगर कोई ऑडी का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में ऑडी का एडवर्टीजमेंट करवाया, ऐसा होता नहीं, एडवर्टीजमेंट कराया और न्यूज़पेपर में ऑडी का एडवर्टाइजमेंट कभी आता भी नहीं है, बाकी और कंपनीज के आते हैं बट उसके जल्दी नहीं आते हैं, बट स्टिल अगर मान लीजिए और न्यूज़पेपर जो रूरल एरियाज का न्यूज़पेपर है या फिर कह सकते हैं कि रीजनल बेसिस में कहा जाए तो मतलब आप ऐसी जगह पे उस न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइज करा रहे हो जो बेसिकली कोई इस पे ध्यान भी नहीं देगा और वहां की जो कस्टमर्स है जहां तक ये न्यूज़पेपर पहुंच रहा है वो खरीद भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में आपके मैक्सिमम रिचेबिलिटी भी जो है दैट इज नॉट वर्किंग। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हु आर योर टारगेट ऑडियंस, कौन आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें मीडिया को चूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, फुल फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट ऑफ पॉश कार इन द लोकल न्यूज़पेपर will not get enough return on investment because the percentage of audience who can afford your car will be meager or very low, ठीक है। पॉश कार, ऑडी, BMW लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर में डालोगे भी, एडवर्टाइज करोगे भी, तो ऐसे केस में भी आपका जरूरी नहीं है कि सब लोग खरीद लेंगे जो भी न्यूज़पेपर परचेज कर रहे हैं, क्योंकि वैसे जो कस्टमर्स होते हैं जो इतने महंगे और लग्जरियस कार को परचेज कर रहे हो बहुत कम होते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट और अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, सेलेक्टिव रहिए, ऐसे एड और मीडियम को चूज कीजिए जो मैक्सिमम रिचेबिलिटी के साथ साथ मैक्सिमम कंज्यूमर भी जो है एक्शन ले, परचेज करे प्रोडक्ट को और आपको फाइनली बेनिफिट हो, ठीक है। परसुएशन में, इम्पैक्ट में जो बेसिकली 100% रिजल्ट आपको देता हो, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग द मीडिया प्लानिंग, यानी कि जब हम चूज करेंगे किसी भी मीडिया आउटलेट को, टारगेट ऑडियंस को, इन सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है what is the process of media planning, what are the various process of media planning, and let me tell you the question which was arised in your examination in last year, that is media planning, meaning of media planning and what are the various factors which are taken in consideration while doing this media planning, okay, what are the various factors. So factors we already completed, okay, if the questions will be asked, same question will be arise in this year, you just need to write all these factors whatever we discussed right now, okay. Next topic process of media planning, what are the various process of media planning, यानी media planning के processes, steps या stages क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, पहला है define your audience, define your audience. The first step in media planning is define your audience. Define your audience में आगे ऐसे डैश देकर लिखिएगा target audience, target audience, टारगेट ऑडियंस। जो सबसे पहला स्टेप है मीडिया प्लानिंग का, डिफाइन करना कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस वो होंगे जो बेसिकली वैसे पीपल होंगे जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, ठीक है, और आप उन्हीं को प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे, ठीक है। योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो इनइफेक्टिव होगा अगर आप प्रॉपर ऑडियंस के पास नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका टारगेट ऑडियंस कौन है और उसके लिए आप क्या क्या चीजों को देखोगे।
एज देखोगे, जेंडर देखोगे, इनकम देखोगे, प्रेफरेंस देखोगे, मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब ऑडियंस का कि कौन सबसे ज्यादा, जैसे यंगस्टर के लिए सबसे अच्छा सोशल मीडिया है ना, वैसे ही डिपेंडिंग ऑन द एज और हैबिट्स देखोगे, डिटरमाइन करोगे कि कौन सा मीडिया प्रेफरेंस जो है, कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस है और वो कौन से मीडिया को प्रेफर करता है सबसे ज्यादा। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे पहले में। डिफाइन योर ऑडियंस, डिफाइन योर ऑडियंस में एक दो लाइन लिख लीजिए। This is the first step of the media planning. This is the first step of media planning. This is the first step of media planning. To define the target audience. To define the target audience. To define the target audience. आगे लिखिए। Define the target audience. आगे। Your target audience is the people. Your target audience is the people to whom WHOM, to whom you want to sell your product. Target audience वही होगा जिनको आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है। आगे लिखिए to reach the audience, we define or we understand various factors. To reach the audience, we define the factors. Define the factors such as age, gender, income, and preference of media platform of your audience. यानी कि जो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, एज जिनके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया कौन सी एज ग्रुप के लिए, जेंडर स्पेसिफिक है तो वो भी हम देखेंगे, इनकम के बेसिस पे यानी हाई इनकम के लिए हमने कोई लग्जरियस प्रोडक्ट बनाया तो वो भी हम देखेंगे, और प्रेफरेंस मतलब कौन से मीडियम को वो ज्यादा यूज करते हैं वो भी हम बेसिकली टारगेट करेंगे, ठीक है। एंड डिपेंडिंग, आगे लिखिए, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड हैबिट्स, जो उनके हैबिट्स हैं, तरीके हैं, उनकी जो एज है, you can determine the media preference of your target audience. ठीक है। अब जैसे टीनेजर्स को अगर नीचे अगर लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट अबाउट इट दैट फॉर द टीनेजर्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट चॉइस कर सकते हैं सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अच्छा, आप लोग में से हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग द न्यूज़पेपर और रीडिंग न्यूज़पेपर? कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रीड करते हो? नॉट स्टडीइंग, इट इज अ रीडिंग। कितने लोग करते हो आप लोग में से? रेज योर हैंड। ऐप में हो जाता है, न्यूज़पेपर नहीं। आकांक्षा पढ़ती है न्यूज़पेपर। रिजल्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेफरेंस ऑफ मीडिया, राइट? यहीं पर क्लास में प्रूफ हो गया कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बेसिकली इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन यूट्यूब, so that's why for teenagers and youngsters the social media is a good platform. Okay, next one, that is next point, define your budget. The second step is define your budget. ऑडियंस को डिफाइन कर लिया, अब बजट देखेंगे कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स कितने हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे, ठीक है। अपना थर्ड पॉइंट जो सेकंड पॉइंट था, डिफाइन योर बजट, यानी कि एक बार जब आपके ऑडियंस डिटरमाइन हो गए कि कौन से ऑडियंस आपके टारगेट ऑडियंस है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो होगा कि हम एडवर्टाइजिंग के लिए बजट बनाएंगे, यानी रिसोर्सेज को एनालाइज करेंगे। बहुत नेसेसरी है कि आप अपने बजट को फिक्स कीजिए, नहीं तो आप जो है इतना ज्यादा कई बार स्पेंड करिएगा जो मे बी आप अफोर्ड ना कर पाए, वेस्टेज हो आपके रिसोर्सेज का। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग करना, बजट को फिक्स करना बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर में आप एक्स्ट्रा अमाउंट को पे या एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च ना करें। फिक्स बजट जो है वो आपकी बेसिकली अवॉइड करेगा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है।
की कि आप के जो वैसे मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके रिक्वायरमेंट नहीं, आप उसको साइड भी कर सकते हो। लिमिटेड पैसा होगा तो लिमिटेड ही आप मीडिया प्लेटफॉर्म और एक प्रॉपर बजट के साथ इसको तैयार करो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में भाई 10 सेकेंड्स वाली एड के लिए आप कितना ज्यादा पे करते हो, वही अगर आप सोशल मीडिया के कंपैरिजन में आप टीवी पे ज्यादा पे करते हो पैसा, है ना, एडवर्टीजमेंट के लिए। इसीलिए अगर आप यूथ को टारगेट कर रहे हो तो आप टेलीविजन को हटा दो, साइड कर दो, और पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, ठीक है। अपने पैसे के हिसाब से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करो, एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे साइड कर दो, क्योंकि ऐसे बात में यूथ जो है टेलीविजन बहुत कम देखते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए बजट के साथ सुटेबल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप चूज कर सकते हो, और हमेशा ध्यान रखिए कि बजट को फिक्स करके रखिए, ठीक है। This one is the second point, analyzing the budget, or we can say that define your budget. Next one is define your goals. Define your goals. Define your goals. ठीक है, यानी कि आपको अपनी गोल को डिफाइन करना है कि आप मीडिया को क्यों यूज कर रहे हो, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सेट करना है आपको गोल को, ठीक है, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मीडिया कैंपेन से, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, राइट। वेदर यू वांट अ क्रिएट अ ब्रांड अवेयरनेस, क्या आप ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपका जो मीडिया जो है, मीडिया की वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज हो, क्या आप अपनी इन्वेंट्री को बेसिकली स्टॉक को जो है वो आप बेसिकली कम करना चाहते हो, ठीक है। नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, किस चीज के लिए बेसिकली आप कैंपेन या मीडिया कैंपेन को यूज करो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उससे। ग्रोथ चाहते हो, सेल्स चाहते हो, ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, नॉलेज देना चाहते हो कंज्यूमर्स को, ठीक है। अगर कोई भी आपका जैसा गोल होगा उस हिसाब से आपको गोल को आपको डिफाइन करना है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बजट यू हैव टू डिफाइन द योर गोल्स, ठीक है। अगर कोई वेल डिफाइंड गोल है, ठीक है, तो मीडिया प्लानर जो है वो मीडिया मिक्स को भी, अप्रोच को भी यूज कर सकता है आपके प्लान के लिए। मीडिया मिक्स का मतलब वही सेम मीडिया चैनल्स को, अलग अलग मीडिया चैनल को आप मिक्स कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफाइन योर गोल्स, मतलब फाइनली व्हाट काइंड ऑफ आउटकम यू वांट फ्रॉम योर मीडिया कैंपेन, ओके। नेक्स्ट वन इज, fourth one is do the required research. Fourth point या fourth process is do the required research. Do the required research. Do the required research. Don't invest in any advertising or any media platform without doing proper research. बिना research के किसी भी मीडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। अगर आपने एफर्ट स्टार्टिंग में लगाया तो मे बी योर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव और मे बी दैट विल बी एफिशिएंट, बट स्टार्टिंग में एफर्ट नहीं लगाकर, मतलब विदाउट मेकिंग एफर्ट, इफ यू आर यूजिंग और चूजिंग एनी मीडिया चैनल और मीडियम, इन दैट केस दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू सेल विमेन फैशन क्लोथ्स, अगर आप कोई विमेन फैशन क्लोथ्स वगैरह सेल कर रहे हो, कुर्ता and other fashion materials, ठीक है, then the right choice for advertising is social media platform Insta और Facebook, ठीक है। यहाँ पर जो women होती है जिसका एज ग्रुप है 16 to 40 years, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करती है, ठीक है। और फैशन बिजनेस के लिए सबसे बेटर तरीका हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रिसर्च कीजिए और देखिए। जैसे मैं बताती हूँ, अभी मैंने कल 1-2 दिन पहले फेसबुक ओपन किया, व्हाट आई सॉ दैट कुछ लेडीज थी, दे वर सेलिंग देयर इयररिंग्स एंड अदर ज्वेलरीज, ठीक है, वही आर्टिफिशियल वाला ज्वेलरी। सो नाउ एनी हाउ आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई विल स्टार्ट सच बिजनेस, इन दैट केस व्हाट विल बी द बेटर वे, वही सोशल मीडिया वाला, और लाइव आकर यूट्यूब, ये फेसबुक पे आई विल स्टार्ट शोइंग माय प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहीं पर से मतलब जो 16 to 40 इयर्स वाले ग्रुप है वो यहाँ मिल जाएंगे। तो ये मैंने एक रिसर्च कर लिया, ठीक है। उनका फिर उस पर्टिकुलर ये फेसबुक पे मैंने ये भी देखा कि कितने लोग उसको व्यू कर रहे हैं, कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोग उनको मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि उनके जो अभी कंज्यूमर है वो 10,000 हैं, ठीक है। तो मैं ये समझ गई कि कम से कम मैं 10,000 लोगों को तो इससे कवर कर लूंगी, इससे सोशल मीडिया से। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रिसर्च जितना हो सके आप रिसर्च करते रहिए। लास्ट नहीं है, अभी तो बहुत सारे पॉइंट है, इट्स 8 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, यूज द स्मार्ट टूल फॉर मीडिया प्लानिंग और टेक एक्सपर्ट हेल्प। यूज स्मार्ट टूल्स फॉर मीडिया प्लानिंग
स्मार्ट टूल्स फॉर मीडिया प्लानिंग और टेक एक्सपर्ट हेल्प। यानी कि आप कुछ टूल्स वगैरह को यूज कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी हैं, ठीक है, आप उसको यूज कीजिए। और एक्सपर्ट, अगर आप चाहते एक्सपर्ट को रखना तो एक्सपर्ट और नॉलेजेबल पर्सन को आप हायर कर सकते हो, मीडिया प्लानर को आप हायर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, 6th पॉइंट में लिखिए, 5th पॉइंट लिख लिया, यूज स्मार्ट टूल्स फॉर मीडिया प्लानिंग और टेक एक्सपर्ट्स हेल्प, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, create the right media mix, create the right media mix, create the right media mix, ठीक है। राइट मीडिया मिक्स में का मतलब क्या है, जहां पर मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, यहाँ पर आप दोनों प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को भी, फॉर किसके लिए, फॉर एडवर्टाइजिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, प्रमोशन और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और ईमेल, न्यूज़लेटर्स, इनको भी आप यूज कीजिए, मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स, पैम्पलेट्स, होर्डिंग्स, ये क्लैडिंग, ये सबको भी आप यूज कर सकते हो, किसके लिए, मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। होर्डिंग, बिलबोर्ड्स, जो बड़े बड़े आप देखते हो पोस्टर्स एंड ऑल, ये सब जो है बिलबोर्ड्स वगैरह, ये सब को भी आप यूज कर सकते हो। यानी ऑनलाइन में जो भी चीजें हैं, ब्लॉग, इंटरनेट कंटेंट, ये सब यूज कीजिए, ऑफलाइन की भी चीजों को, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर, होर्डिंग, बिलबोर्ड्स, क्लैडिंग, ये सब भी आप यूज कर सकते हो, किसके लिए, प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट को। तो क्रिएट द राइट मीडिया मिक्स इज द सिक्स्थ स्टेप। 7th में क्या करना है, जब एक बार आपने मीडिया मिक्स को रेडी कर लिया, आपने प्रॉपर बजट सब कुछ देख लिया, अब अपने प्लान को क्या कीजिएगा, एग्जीक्यूट, यानी एग्जीक्यूशन, you execute your plan, execute your plan is the 7th point, execute your plan, 7th step, execute your plan। एक बार आपने प्लान सब कुछ कर लिया, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन करना जरूरी है, ठीक है। आप मीडिया एक्सपर्ट की हेल्प से, टूल से, कौन सा राइट टाइम है अपने एडवर्टीजमेंट को रन करवाने का, मैसेजेस भेजने का, वो आप डिटरमाइन कर सकते हो। Which time is the suitable time for doing the advertisement work when once the media mix is determined? Next one is execute your plan के बाद evaluate your plan, evaluate your plan। Evaluation is something which is going to tell you that what is the result, fail or pass, ठीक है। So evaluate is the last step of your planning, media planning का last step है, जहां पर आप ये देखिएगा कि आपका प्लान सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा सक्सेसफुल, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो फ्यूचर मीडिया प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या मॉडिफिकेशंस और चेंजेस करने की जरूरत है, आप वो एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। सो इवैल्यूएट योर प्लान विल टेल यू दैट हाउ मच your media mix is influencing the consumer, how much that is successful. If it will not, then in the another media planning and in another advertisement, what you can do, you can take the experience from that, you can modify, you can changes the media mix planning, you can changes the types of medium and all, and you can modify your media planning। तो ये सारे स्टेप्स क्या थे आपके मीडिया प्लानिंग के। किसी को कोई डाउट है, जो भी पॉइंट्स मैंने करवाया है, 8 पॉइंट्स आर देयर इन द मीडिया प्लानिंग प्रोसेस, 5 or 6 factors are there for media planning and the meaning of media planning. Anyone have any doubt in these topic whatever we discussed today? किसी को कोई डाउट है, raise your hand। क्लियर, समझ में आ गया सबको? ओके, about the media planning, what is the meaning of that? Raise your hand। प्रोडक्ट को किस तरह से, मतलब कि कहाँ पे, कैसी और कब अपने प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि रिटेलर को अपने प्रोडक्ट को दे के क्या कहते हैं, उसको छोटा दे के, वो भी लोकल फैक्टर्स। रेज योर हैंड दिस वे। पहला तो है रीच, कितना वो मीडिया आपको रीच आप कितनी हो पाएगी उस एडवर्टाइजमेंट से, और फिर सेकंड है कॉस्ट। with English, okay, and the first point is reach,
how much is the reach that media platform can give the advertisement? Media, how much can be the reach of that advertisement? The second one is cost per thousand. The cost of advertisement is divided by Per thousand thousand consumed. to get the cost per thousand. Third factor is frequency of advertisement. How much time the advertisement will get repeat in that media platform that you are using. Fourth one is impact. How likely the customer is going to buy that product by getting persuaded by that advertisement. And last one is selectivity. That are we focusing on the right type of audience that we want to persuade them to buy? We can't advertise a product in a rural area that is very costly, like a luxurious car or something like that. So the selectivity is very important. This is all. Okay, who is going to tell me about the process, media planning process? Raise your hand. Process of media planning. Who is going to tell me about it? Raise your hand. Process of media planning. Who is going to tell me? Raise your hand. Who is going to tell me about the media planning process? Raise your hand. Who is going to tell me about it? Tell me. Ma'am, first one is define your audience. Second one is define your budget, in which we have to analyze the resources. Third one is define your goals. Fourth one is do the required research. Fifth one is use the smart tool for media plan and take help from experts. Sixth one is create the right media mix. Seventh, execute your plan, and eighth one is evaluate your plan. सब लोग को याद हो गया जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स किए? सब लोग को लर्न हो गया? एवरीवन सबको लर्न हो गया? चलिए Yes, ma'am. ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड द एमसीक्यूज. ओके, चलिए बताइए मुझे. क्वेश्चन 1. where the deal is accomplished between buyers and sellers through a medium of phone, letter, or through medium of internet. Raise your hand. Marketing, selling, and planning. Dash where deal is accomplished between buyers and sellers through the medium of phone, letter, or through medium of internet. Marketing, selling, and planning. Yes, Muskan? B, marketing. Ved? Selling. Akanksha? Selling. 16 roll number. Priyanshu? I'm selling. Next, Anshu? Selling, ma'am. Okay. The answer is market. Answer is A, market. Why market? हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी जहां बायर्स और सेलर्स का जो डील हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो टेलीफोन से हो, दैट इज बेसिकली नोन एज मार्केट. मार्केट हो रहा है मतलब एक जगह जहां पर बेसिकली हम प्रोडक्ट को सेल और परचेज कर रहे हैं. तो जहां पर जो डील हो रहा है बायर्स और सेलर्स के थ्रू, फोन से हो, चाहे लेटर के थ्रू हो, इंटरनेट के थ्रू हो, या फेस टू फेस हो, दैट विल नोन एज मार्केट. यहाँ पर जहां पर डीलिंग होता है, जहां पर ट्रांजैक्शन होता है. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, which of the following is the feature of marketing? Needs and wants, creating market offering, customer value, all of the above. Raise your hand. Yes, Akanksha? Ma'am, D, all of the above. Muskan? All of the above. Ved? All of the above. Suman? All of the above, ma'am. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नीड्स भी जरूरी, वांट्स भी समझना जरूरी है, मार्केट ऑफरिंग, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एंड साथ साथ में कस्टमर के वैल्यू. ऑल द थिंग्स आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. DAS concept is based on those companies who believe in this philosophy that quality of goods or services of good standard can easily attract customers. Marketing concept, production concept, product concept, and
selling concept? Yes, Muskan. Marketing concept. Ved, Product concept. Anshu, Marketing concept, ma'am. anyone else who want to give the answer of this? See, we all, yes, roll number 21, Money. Product concept, ma'am. The answer is product concept. Why the marketing concept is not about the quality only, but it is basically integrating all the kinds of activities. इसमें quality भी देखेंगे, production भी देखेंगे, selling भी देखेंगे, but all the products are made according to the needs and want of the customer. यानी customer का जैसा demand होगा वैसा product बना के customer को provide करेंगे. बट प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था कि जहां पर मार्केटर सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस कर रहा था कि अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट देंगे ना तो हमारे कंज्यूमर्स अपने आप प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिकेशन एक ही एरिया में वर्क कर रहा था, दैट इज प्रोडक्ट क्वालिटी. तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रोडक्शन हम हाई करें, यानी प्रोडक्ट को बस प्रोड्यूस करते रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, बल्क में सेल करें और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रिच करें, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और ज्यादा मार्केट एरिया को कैप्चर करें. ये आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट था. मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? बेसिकली दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरी काइंड ऑफ कंसेप्ट एज वेल एज इट आल्सो डिटरमाइन दैट द consumer is the king of the market and whatever we are offering that will be according to the need and want of the customers. तो ये था marketing concept. And selling concept is something जहां से प्रोडक्ट को सेल करना है, aggressively सेल करना है, compel करना है, यूज करना है इस प्रमोशन टेक्निक को. but the only reason of selling concept is to sell the products, that's it. प्रोडक्ट को सेल करते रहे, that is selling concept. Concepts are very much important. कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा what is the marketing orientation, what are the various concepts of marketing, you just need to write about all the concept: marketing concept, production concept, product concept, selling concept, and there are two other concept, that is social marketing concept and holistic marketing concept. ये सारे आपके concept में आएंगे, इन सबको define कीजिएगा. Next point. Which of the statement is not true for selling? Focuses on the need of seller, aims at maximizing sales, involves fragmented approach to sale, selling is limited to exchange of goods and services. Which one is the answer? Raise your hand. Raise your hand. Yes, Akanksha. Ma'am, A focuses on the need of seller. Actually there is some confusion in this question because the यहाँ पर true होना चाहिए, not true नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए true. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम है. अब देखिए क्या होगा आंसर. नो मैम, मतलब मार्केटिंग में ना वो देखता है सेलर, ट्रू फॉर सेलिंग में तो बस उसको बेचना होता है. सेलिंग में सिर्फ एक ही एम होगा, दैट इज मैक्सिमाइजिंग द सेल्स. ठीक है, द आंसर विल बी मैक्सिमाइजिंग द सेल्स एंड द फोकस ऑन द नीड ऑफ सेलर, दैट विल बी द आल्सो आंसर. बट थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ था. सेलिंग का मतलब ये होता है मैक्सिमाइज करें हम सेल को, सिर्फ सेल करते रहे, ठीक है, प्रोडक्ट को, और सेलर की नीड पे भी फोकस करें, यानी सेलर सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचेगा. बट यहाँ पर आंसर बी होगा. Next question, dash is the process of classification of product into different group on the basis of some of its important characteristics. Grading, packaging, standardization, branding. Raise your hand. Dash is the process of classification of products into different groups on the basis of some of its important characteristics. Yes, Muskan. A, grading. Akanksha. I think A, ma'am. Confirm नहीं. Wait. Grading. Yes, जो प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडिंग. ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, बड़े से छोटा, शॉर्ट करना, ये सब ग्रेडिंग में आपका आएगा. क्लासिफाई करना यानी सजाना, प्रेजेंट करना, एवरीथिंग विल कम अंडर द क्लासिफिकेशन वेयर वी आर मेकिंग द ब्लॉक्स. तो इसको हम कहेंगे ग्रेडिंग. ठीक है, क्लैरिटी बेसिस पे, कई बार पेरिशेबिलिटी बेसिस पे, बहुत सारे बेसिस पे हम ग्रेड बनाते हैं. ठीक है, तो ग्रेडिंग विल बी द आंसर. Okay, so I guess for today these 5 MCQs are more than enough. In next class we will complete other MCQs as well. So anyone have any doubt whatever we studied today?
किसी को डाउट है कोई भी पॉइंट में, कोई भी टॉपिक में? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑन सैटरडे. सी यू ऑल ऑन सैटरडे. थैंक यू मैम.